Good morning, good afternoon, everyone. In our last lecture, we have seen the division operator and cross product, right? Let's start with the new operator, that is the rename operator. As you know, in a SQL, we are renaming the column name as well as table name, right? Alter से column name change करते हैं, alter with rename keyword, and rename old table to new table, that is uh, renaming of table, right? Similar thing we are doing in a relational algebra operator. So rename, it is represented as the row. Row is the symbol for writing the rename operator, row. Notation, row A into bracket x1, x2, x3, xn into bracket r. R, it means relation, table from which you want to uh, perform these operations. It renames the existing relation. Rename हम दो चीज कर सकते हैं by three method. We can rename two things by applying three methods. First, we can rename the table name. Second, we can rename the column name. That is the attribute name. So first syntax, row x of r, that is the syntax to rename the relation. That is the syntax to rename the table. So it renames the relation r to x. X is the new name, r is the old name. Right? X is the new name, r is the old name. Next, row x into bracket a1, a2, an into bracket r. R it means old name, x it means new name of that relation. What is a1, a2, an? It means it will also change the name of attributes. It will rename the column names also, right? And last one, row a1, a2, an from r. It means it will rename only attributes. It will rename only attributes or columns, right? So these three are the syntax by which we can apply, we can rename two things, table and column, relation and attributes, right? Let's see one example. Book title, comma author, comma year, comma price. Online students, is it properly audible and visible? Yes, sir. Okay. Here, book title, comma author, comma year, comma price. This is known as the schema, right? सिर्फ टेबल नेम दिया है, एट्रीब्यूट्स नेम्स दिए हैं. इन एग्जाम, इन एनी एग्जाम दे विल गिव दिस ओनली. स्कीमा आपको दिया होगा, डेटा आपको नहीं दिया होगा, डेटा टाइप नहीं, साइज नहीं, कुछ भी नहीं. अकॉर्डिंग टू दैट एट्रीब्यूट नेम यू नीड टू assume this will be the data type, right? Most of time जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जनरल वे में ही हो जाएगा, right? So here book relation with attribute author, year, price, titles are given. Now we want to change the name of relation. Book से हमें temp करना है. So first example, row temp into bracket b name, comma a name, comma p year, comma b price. These all are the new name of attribute. Title, author, year, price के नए नाम है, और book जो relation है उसका नया नाम क्या है, temp. Second, here only the relation name is renamed, so row temp book. Row temp book. Sirf table name, relation name is changed. And the last, only attributes, b name, a name, p year, and b price from the book, right? Let's see one more example with data. जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ग्राफिकली इजी हो समझने में, इसलिए. Employee is relation, it is having a three attributes, id, name and salary, right? First syntax, row student employee, it means it will rename the employee table with the name student. So see the output on screen. Student is the new name of
एम्प्लॉय आईडी नेम एंड सैलरी एज इट इज, क्योंकि सिंटेक्स में सिर्फ टेबल नेम ही रीनेम किया है। नेक्स्ट में हम सिर्फ एट्रीब्यूट रीनेम करते हैं, आईडी इक्वल से नेम, ई नेम से सैलरी बैलेंस से। सो रो इक्वल ई नेम बैलेंस फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल एंड एम्प्लॉय यहाँ पे इक्वल ई नेम एंड बैलेंस। हो गया? मुझे पता है क्या क्वेश्चन मैं सर हमने रीनेम कर दिया था टेम्प किसमें, स्टूडेंट में। सो यहाँ पे ब्रैकेट में स्टूडेंट आना चाहिए कि एम्प्लॉय आना चाहिए? नहीं है वो, हाँ नया है इसलिए बोल। तीन तीन लिखना, जैसे क्रिएट टेबल फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल में करते थे ऐसे, राइट। एंड थर्ड वन, बोथ table name as well as attribute name will be changed, right? Okay, now my question, not for this rename operator, it is very easy. Whatever we have stopped in a last lecture, what was that? Now it's time to resume that thing. What was that? Division operator. But what is the issue? Disadvantage and advantage, that is right. प्रॉब्लम क्या था, हमें आज क्या सीखना है? Yes, good Jenny. In a cross product we are getting the inconsistent data, so that's why we are not getting the appropriate data for the remaining part, like 102 और 103 का कुछ पार्ट नहीं पता चल रहा था, ठीक है, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कौन है, ठीक है। सो उसका सॉल्यूशन अभी हमें देखना है। सो फॉर दैट natural join we have, another name of natural join is inner join. Natural join, that is the inner join. Symbol for this is denoted like a डमरू, ऐसा ही दिख रहा है ना, रावण माँ से डमरू, रिलेशन 1 R1 डमरू R2, ऐसा बोलते नहीं है। ऑपरेशन, natural join will retrieve consistent data from multiple relation. हो गया solution? How? That we will learn. क्रॉस प्रोडक्ट से क्या मिल रहा था? फ्रॉम द क्रॉस प्रोडक्ट, फर्स्ट why we are taking the cross product to join multiple tables, दो टेबल में से कुछ डेटा लेना है इसलिए, ठीक है, स्टूडेंट और रिजल्ट टेबल में से हमें डेटा लेना था इसलिए, बट in that cross product we are getting the inconsistent data. Similar same example we will take in this natural join and we'll see how it will give the consistent data, right? So let me recall that one so you can get the idea. यहाँ पे देखो inconsistent रो कितनी, 3 है, 101 103 लास्ट 3 रोज इन शॉर्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट का आउटपुट ये आ रहा है, तो ये इनकंसिस्टेंट डेटा है जो परमिसेबल नहीं है। तो हम नेचुरल जोन में ऐसा क्या करेंगे कि वो इनकंसिस्टेंट डेटा कंसिस्टेंट में चेंज हो जाए। सो यहाँ पे लिखा ही है, नेचुरल जोन विल रिट्राइव कंसिस्टेंट डेटा फ्रॉम मल्टीपल रिलेशन। सो इनकंसिस्टेंसी रिमूव होगी इसमें। हाउ? लेट्स सी। इट कंबाइंस रिकॉर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट रिलेशन दैट सेटिस्फाई अ गिवन कंडीशन। जो कंडीशन होगी वो सेटिस्फाइड होगी, अकॉर्डिंग टू दैट आपको मिलेगा। बट कंडीशन टू अप्लाई द इनर जॉइन एंड और नेचुरल जॉइन इज इन बोथ टेबल वी शुड गेट द कॉमन एट्रीब्यूट, कॉमन कॉलम, दोनों में कॉमन कॉलम होनी चाहिए। टू परफॉर्म अ नेचुरल जॉइन देयर मस्ट बी वन कॉमन एट्रीब्यूट्स बिटवीन टू रिलेशन एंड these three are the steps. Step number 1, it performs the Cartesian product. आप बोलेंगे सर कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो इनकंसिस्टेंसी आ रही थी इसलिए तो हमने नेचुरल जॉइन सीखना है, लेकिन स्टेप नंबर 2, देन इट डिलीट्स द इनकंसिस्टेंट टपल, सो इट विल रिमूव लास्ट 3 टपल्स। सो इनकंसिस्टेंसी रिमूव हो गई, बाकी क्या बचा? फर्स्ट रो,
तो फर्स्ट रो में देखो दो कॉलम कॉमन थी, रोल नंबर, तो दो बार लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों का डेटा कंसिस्टेंट है, सेम है। सो उसको एक बार लिख दो। सो थर्ड स्टेप, देन इट रिमूव्स एन एट्रीब्यूट्स फ्रॉम डुप्लीकेट एट्रीब्यूट्स, डुप्लीकेट में से एक हटा देंगे। ठीक है, लेट्स सी स्टेप बाय स्टेप, सेम एग्जांपल वी आर टेकिंग हियर। स्टूडेंट एंड रिजल्ट, यही एग्जांपल था हमारा। इसका पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो क्या आएगा, स्टेप नंबर 1 ये आएगा। यहाँ तक सबको पता है, राइट? दोज हु आर नॉट स्लीपिंग, उस सबको पता है। दोज हु वर एब्सेंट इन लास्ट लेक्चर might be they have gone through the recorded lecture. Step number 2, it removes the inconsistent data. So inconsistent tuples, so हमारे पास एक ही बचा। ठीक है, ठीक है। और लास्ट में क्या बोला, रिमूव्स एंड एट्रीब्यूट्स, डुप्लीकेट एट्रीब्यूट्स, स्टूडेंट डॉट रोल नंबर एंड रिजल्ट डॉट रोल नंबर, दो बार लिखने की जरूरत नहीं, दोनों का रोल नंबर सेम ही आएगा क्योंकि कंसिस्टेंट डेटा वी आर गेटिंग, राइट? सो दिस इज द फाइनल आउटपुट फॉर दिस 101 Raj CE8. Are you getting? So inconsistency remove हो गई। Is there any query, any question from your side? Is there any query, any doubt? No, sir. Any students? जागता हो तो डाउट है क्यों? हाँ, yes. Any other question, any other doubt? Same question one student asked me in our offline, which R Vivek is asking, sir, then what will happen to data of 102 and 103? Good, excellent to these two students, R Vivek and Ankur Sakar, right? એવું હું કહી શકીશ પ્રાઉડલી કે આ બે જ જાગે છે, કેમ કે મેં લાસ્ટ લેક્ચરમાં કીધું હતું. ઇન લાસ્ટ લેક્ચર આઈ ટોલ્ડ યુ, open your mind and eyes in next lecture. First, we learn the cross product. In cross product, we find out the inconsistency. That inconsistency is removed in a natural join, inner join. But what about 102 and 103? Some records are missing. Some records are missing in a natural join. So natural join is failed. Can we say yes? Why not? In this case, it is failed because as the output of this student natural joint result, 102 and 103 तो किडनैप हो गए, उसका कोई अता पता ही नहीं, रेशन कार्ड में से नाम निकल गया, लेकिन है जिंदा अभी, तो उसका क्या? So by applying natural join, some records are missing, although we are getting the consistent data. Consistent data में भी कुछ records missing है, so that's why we need to learn the outer join. That's why we need to learn the outer join. Let's see outer join. So in natural join, some records are missing. If we want that missing records, then we have to use the outer join. And this is very important topic in exam point of view. They may ask, explain outer join in 3 marks, 4 marks, or any types of join. Join is the important concept. Why? Can anyone tell me join is important concept? Okay. Online students, why join is important topic? As expected. No answer. Well done, Ankur. As you know, from select statement, you can get the you can retrieve the information from single table. Select star from
this table. But if we apply a joins on that statement, if we apply the joins with that statement, select statement के साथ join apply करें, then we can get the data from multiple tables. स्टूडेंट टेबल एक अलग था, रिजल्ट टेबल अलग था, दोनों में से हम ज्वाइन करके आउटपुट ले रहे हैं, राइट? So that is the advantage of join. Whenever we want to retrieve some data from multiple table, no Raj, we can use them to filter data. No, it's wrong. Whenever we want to retrieve few column, few data from multiple table, at that time join is required. उसके लिए तो join है, name suggests its meaning, right? Okay, in this we have a three category: left outer join, right outer join and full outer join. सिंबल यहाँ पे लिखे है, ड्रॉ किए, वैसे सिंबल आपको ड्रॉ करने हैं, उसका नाम नहीं रहता, ठीक है? Now if you are sleeping, then good morning, because now we are going to discuss very much important topic, that is left outer join. And if you remember this left outer join, then my job is done, because automatically you will get the right outer join and automatically you will learn the full outer join. So मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये शॉर्टकट हुआ, एक सीखने से बाकी का 3 फ्री में मिल रहा है, एक पे दो. तो एग्जाम में ऐसे ही स्कोर कर सकते हो, एक आ गया क्योंकि ज्यादा तो पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है, राइट? सो लेट्स सी द लेफ्ट आउटर जॉइन. इट डिस्प्ले ऑल द टपल्स ऑफ लेफ्ट रिलेशन इवन दो देयर इज नो मैचिंग टपल इन द राइट रिलेशन. ज्वाइन का मतलब क्या है? 2 टेबल ज्वाइन करना, ठीक है? स्टूडेंट और रिजल्ट टेबल थे, उसमें से लेफ्ट क्या हुआ? स्टूडेंट, राइट क्या हुआ? रिजल्ट. सो लेफ्ट टेबल में जो भी टपल्स है वो सारे डिस्प्ले करेंगे इवन दो देयर इज नो मैचिंग टपल इन अ राइट रिलेशन. राइट रिलेशन में उसका मैचिंग नहीं है तो भी डिस्प्ले करेगा. उसका एडवांटेज क्या? कोई वैल्यू स्किप नहीं होगी, उसको पता चल जाएगा कि ये चीज जिंदा है, ठीक है? तो उसकी जगह हम मैचिंग में क्या लिखेंगे? नल वैल्यू. वहां पे नल लिख देंगे. नल का मतलब ये हुआ, meaning of the null is unknown value. We are not knowing that thing. empty नहीं है, empty नहीं, zero नहीं. null का मतलब unknown value, हमें नहीं पता, ठीक है? So for such kind of tuples having a no matching, the attributes of right relation will be padded by using the null in a output relation and it is denoted by this one. एक एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा, अगर नहीं हो रहा है तो मुझे फिर से बताना, ठीक है? लेट्स सी द एग्जांपल फर्स्ट, देन आई विल आस्क. इफ यू हैव क्वेरी यू कैन आस्क. वी हैव अ 2 रिलेशन, क्लास एंड क्लास इन्फो. क्लास एंड क्लास इन्फो, दिस 2 टेबल. मुझे लेफ्ट टेबल क्लास है, राइट टेबल क्लास इन्फो है, दोनों का लेफ्ट आउटर ज्वाइन करें तो आउटपुट का टाइटल देखो, क्लास लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्लास इन्फो, ठीक है? ये ज्वाइंस हम प्रैक्टिकल में भी परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है? सो यहाँ पे देखो, क्लास एंड क्लास इन्फो से मैं बोलूं व्हाट इज द एड्रेस ऑफ 2 एडम? व्हाट इज द एड्रेस ऑफ 2 एडम? मुंबई, राइट? व्हाट इज द एड्रेस ऑफ 1 अभी? दिल्ली. व्हाट इज द एड्रेस ऑफ 4 अन्नू? नो एड्रेस, नॉट स्पेसिफाइड. सो उसका मतलब क्या हुआ? अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इनकंसिस्टेंट डेटा आएगा डेफिनेटली. अगर हम नेचुरल ज्वाइन करेंगे तो ये 4 अन्नू है, उसका एड्रेस हमें नहीं मिलेगा. 4 अन्नू है एग्जिस्ट, वो भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो डिलीट हो जाएगी इनकंसिस्टेंसी, ठीक है? तो उसका क्या करना है? उसका कुछ नहीं करना, आउटर ज्वाइन लगाओ. कैसे? लेफ्ट आउटर ज्वाइन है तो लेफ्ट टेबल को एज इट इज लिख दो, 1 2 3 4 5 अभी एदम एलेक्स अनु आशीष. यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 नेम अभी एदम एलेक्स अनु आशीष. नाउ फाइंड आउट द मैचिंग एप्रोप्रिएट फ्रॉम द राइट टेबल. सो 1 अभी का एप्रोप्रिएट क्या है? 1 दिल्ली, तो मैंने यहाँ 1 दिल्ली लिख दिया.
टू आदम का क्या है, टू मुंबई, थ्री का, थ्री चेन्नई, फोर का नहीं मिल रहा है, राइट टेबल में से उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, नल। फिफ्थ का नल। तो आप बताएंगे कि लेफ्ट आउटर जॉइन में एक भी डेटा मिस हुआ, तो आप जो कितना बोल रहे थे सर ये 102 103 का क्या, वो मिल जाएंगे। अगर हुआ और नहीं हुआ फिर भी हमें नल वैल्यू मिलेगी, जो भी वैल्यू है। ठीक है, क्लियर? इज देयर एनी क्वेरी, एनी डाउट ऑनलाइन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, डू यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट इन लेफ्ट आउटर जॉइन? ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि लेफ्ट आ गया तो राइट खुद से आ जाएगा और फुल एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रंजय आराम से लेक्चर अटेंड करना। चलो ठीक है, गुड, क्लियर हो गया, दैट्स फाइन। अब मैं लेफ्ट की जगह राइट लिख दूं तो राइट आउटर जॉइन हो जाएगा। उससे पहले एक एग्जांपल है एम्प्लॉय और स्टूडेंट का। डिस्प्ले नेम, सैलरी एंड बैलेंस ऑफ दी ऑल एम्प्लॉयज। कैसे पता चलेगा कि मल्टीपल टेबल लेने पड़ेंगे, ज्वाइन का यूज करना पड़ेगा। डिस्प्ले नेम एंड नेम, सैलरी एंड बैलेंस। नेम कौन सा टेबल से, एम्प्लॉय, सैलरी एम्प्लॉय, बैलेंस स्टूडेंट। तो मतलब क्या हुआ, दो टेबल अलग अलग है, दो टेबल को ज्वाइन करना है तो ज्वाइन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आइदर यू यूज द क्रॉस प्रोडक्ट, इनर जॉइन और आउटर जॉइन। लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम है वो आपको पता है, इनकंसिस्टेंसी और सम रिकॉर्ड्स आर मिसिंग। सो यहाँ पे देखो, पाई नेम सैलरी कॉमा बैलेंस इनटू ब्रैकेट एम्प्लॉय लेफ्ट आउटर जॉइन स्टूडेंट, उससे हमें आउटपुट ये मिलेगा। क्लियर? नाउ राइट आउटर जॉइन। मैं डायरेक्टली एग्जांपल पे जाऊं, डायरेक्टली, क्योंकि राइट आउटर जॉइन में आप समझ सकते हो। ठीक है, राइट आउटर जॉइन में क्या करना है, राइट टेबल एज इट इज लिखना है। 1 2 3 7 8 दिल्ली मुंबई चेन्नई नोएडा पानीपत। 1 2 3 7 8 दिल्ली मुंबई चेन्नई नोएडा पानीपत, एज इट इज लिख दिया। ओके, टेल मी द नेम ऑफ वन दिल्ली। वन आईडी है, दोनों में कॉमन कॉलम आईडी है, जो मैचिंग होगा वो हमें मिलेगा। वन आईडी का मैचिंग क्या है, वन अभी लिख दिया। टू मुंबई का मैचिंग टू एदम लिख दिया। थ्री चेन्नई का थ्री एलेक्स, थ्री एलेक्स लिख दिया। सेवन नोएडा का कुछ नहीं, तो लेफ्ट साइड में हमने नल लिख दिया। ठीक है, और 8 पानीपत नल, तो यहाँ पे हमने नल लिख दिया। दिस इज राइट आउटर जॉइन। है इजी, लेफ्ट पता चला तो राइट पता चला, दोनों पता चला तो full display all the tuples of both relation. It also pairs null values whenever required. लेफ्ट साइड चाहिए तो राइट साइड पेड, राइट साइड चाहिए तो लेफ्ट साइड पेड, इसलिए हाईलाइटेड है। लेफ्ट आउटर जॉइन प्लस राइट आउटर जॉइन, दोनों का एडिशन। ये रहा हमारा एग्जांपल। देखो, इतना आउटपुट राइट का है, इतना आउटपुट लेफ्ट का है, दोनों टेबल हो गया। अब देखो इसमें से मुझे बताओ कौन सी वैल्यू मिसिंग है। 4 की वैल्यू मिसिंग है, नहीं। 5 का डेटा मिसिंग है, नहीं। 7 नोएडा का, नहीं। 8 पानीपत का, नहीं। एक भी आईडी मिसिंग नहीं है। इट मींस आपको पता है कि 1 2 3 4 5 7 8 इतने आईडी है, उसमें से एक भी आईडी मिसिंग नहीं है। किडनैप कोई नहीं हुआ। हाँ, हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, कहाँ छुपा है वो नहीं पता, लेकिन छुपा है वो पता है। क्लियर? डन? नाउ एनी क्वेरी इन एनी आउटर जॉइन? आउटर जॉइन इंपॉर्टेंट है। अब पता चल गया क्रॉस, इनर एंड आउटर। सो नाउ आपको इंपॉर्टेंस पता होने चाहिए कि जॉइन किस लिए चाहिए। ओके, वन लेट मी आस्क वन कॉमन क्वेश्चन apart from this. In a general way, which concept we are using in a database? In a database everywhere, in a real life, which concept we are using? Join, natural join, outer join, cross product, or from single table? Which concept we are using? Type your answer into chat. रूटीन लाइफ में हम कौन सा टॉपिक जनरल वे में यूज करते हैं, ज्यादातर क्या यूज होता है? इसको बोलते हैं एप्लीकेशन, रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ दिस टॉपिक।
आप सोचो, टाइप पेस्ट करो आंसर, मैं आया। ओके, नो आंसर फ्रॉम ऑनलाइन स्टूडेंट। एज इट इज रेगुलरली जो आप करते हैं वही करना है। गुड। कौन सा जॉइन? नेचुरल जॉइन। नेचुरल जॉइन आर्ग्यूमेंट। तो नेचुरल जॉइन में प्रॉब्लम क्या था? तो आउटर जॉइन हमने सीखा। Some records are missing, that's why we learn the outer join. So most of time we are using the join concept, specifically outer join, full outer join, क्योंकि अगर हम नेचुरल जॉइन या फिर क्रॉस प्रोडक्ट यूज करें तो कुछ वैल्यू मिसिंग हो जाएगी आपकी। ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन, set operators. In this, it combines the result of two or more relation and will give the single result. It combines the two or more relation and will give the single result. Three types of set operators we have: union, intersection, and third one is the minus or set difference. यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस, उसका नाम है सेट डिफरेंस। यूनियन आपको पता है, इंटरसेक्शन आपको पता है, सेट डिफरेंस मुझे पता है। तो आप दो मुझे बताओ, मैं आपको एक बताऊं। यूनियन का मतलब ओके, ऋषि संघवी, गुड। तीर्थ, combination of all element from different set, that is union, right? Let's see. सिंबल आपको पता है, u, नोटेशन, रिलेशन 1 u, रिलेशन 2, इस दोनों में जो भी यूनिक है वो सब कुछ आएगा। सो इट विल सिलेक्ट टपल्स दोज आर इन आइदर और बोथ ऑफ द रिलेशन, एक में है या फिर दोनों में है, ऐसे टपल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। बट कंडीशन इज दैट दिस टू रिलेशन शुड बी कंपेटेबल। कंफर्ट नहीं है तो यूनियन इंटरसेक्शन हम अप्लाई नहीं कर सकते, मैथ्स में सीखे थे, लेकिन मैथ्स में वैल्यू सेम डोमेन से होनी चाहिए, ऐसा सीखे थे। ठीक है। यहाँ पे कंपेटेबिलिटी, कंपेटेबिलिटी इट मीन्स both have the same arity. Arity it means the number of attributes in both tables should be same. एक टेबल में एक रिलेशन में 4 एट्रीब्यूट्स है तो दूसरे में भी 4 ही होने चाहिए, अगर 3 है तो मैचिंग नहीं है। ठीक है। कुंडली परफेक्ट मिलनी चाहिए, दैट इज कंपेटिबिलिटी। Second condition, domain of ith attributes of R and S are the same. Domain, all possible values, एक कैटेगरी की होनी चाहिए। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सिर्फ लिख देना, बोथ आर कंपेटिबल। लेट्स हैव रिलेशन R and S we have, and union operations we are applying. Whenever we are applying the union operation on two set, it will also remove the duplicate rows. दो बार लिखने का कोई मतलब नहीं है। आप देखो, पहले हम R से स्टार्ट करते हैं। अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, ये तीन तो आएंगे ही। ठीक है। अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 R यूनियन S में आ गए। अल्फा 2, बीटा 3, अल्फा 2 इज ऑलरेडी देयर, सो उसको दूसरी बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो रिमूव डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, एंड बीटा 3 नहीं है तो बीटा 3 लिख दिया। दिस इज द आंसर ऑफ यूनियन ऑपरेटर।
Done. This is the example. List out all persons who are either customers or employee of the bank. List out all person names who are either customer or employee. So pi name of customer union pi name of employee. तो ऐसे नेम आप हमको मिल गए जो कस्टमर भी है और एम्प्लॉय भी है. ठीक है. दिस इज द एग्जांपल. बट suppose here customer and employee both are not compatible, तो यहाँ पे यूनियन नहीं होगा. लेकिन यूनियन यहाँ पे क्यों पॉसिबल हुआ है? क्योंकि पाई प्रोजेक्शन के साथ हमने एक ही कॉलम ली है, नेम. तो दोनों में एट्रीब्यूट सेम हो गए, नेम दोनों का डोमेन सेम हो गया. दैट्स व्हाई इट इज कंपैटिबल. सो वी कैन राइट लाइक दिस. तो आउटपुट हमें ये मिलेगा, केविन, जय एंड राजेश. ठीक है सर, आपने वो यूनियन की कंडीशन क्या बताई, एक बार रिपीट करेंगे? कंपैटिबिलिटी. नहीं, यूनियन की कंडीशन. कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स की कंपैटिबिलिटी की बात कर रहे हो ना? नहीं सर, यूनियन की कंडीशन मतलब आपने बोला ना कि एट्रीब्यूट सेम होने चाहिए, वो वाला. ये कंपैटिबिलिटी, वही तो मैं बोल रहा हूँ. कंपैटिबल होना चाहिए. बोथ रिलेशन शुड हैव दी टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट सेम होने चाहिए, और डोमेन ऑफ दैट एट्रीब्यूट शुड बी सेम. आर एंड एस के जो भी डोमेन हम ले रहे हैं वो सेम होने चाहिए. यहाँ पे देखो हम नेम ले रहे हैं एज अ एट्रीब्यूट, तो दोनों में एक एक एट्रीब्यूट है. वन एट्रीब्यूट फ्रॉम एम्प्लॉय, वन एट्रीब्यूट फ्रॉम कस्टमर. तो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड. सेकंड, दोनों का डोमेन सेम है, नेम का सेम ही होगा. दूसरे सब में हम नेम स्टोर कर रहे हैं. ठीक है. तो इसलिए यहाँ पे यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है. मोस्ट ऑफ टाइम 99% कंपेटेबल होते ही. हाँ, नहीं होते तो पाई से हम अगर नहीं होता है तो हम पाई से पर्टिकुलर कॉलम ले लेंगे तो हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इंटरसेक्शन. कॉमन, जो भी दोनों में कॉमन है वो. सो इट सिलेक्ट्स द टपल्स which are in both relation. Notation is ulta u. This is the example. थोड़ू कच्चा. इंटरसेक्शन आर एंड एस. फाइंड आउट द कॉमन. अल्फा 1 दोनों में है, नहीं है. अल्फा 2 को दोनों में है, यस है. तो आंसर सिंपल. Display name of person who are employee as well as customer. So pi name of employee intersection pi name of customer. केविन ही आएगा, दोनों में एक ही है केविन. ठीक है. Now next one, माइनस और सेट डिफरेंस ऑपरेटर. सिंबल माइनस, रिलेशन 1 माइनस रिलेशन 2. हाँ, इसमें केयर करना जरूरी है. ओपन योर आइज. क्या रिलेशन 1 माइनस रिलेशन 2 इज नॉट इक्वल्स टू रिलेशन 2 माइनस रिलेशन 1. जैसे 2 माइनस 3 इज नॉट इक्वल्स टू 3 माइनस 2, राइट. दोनों में वैल्यू चेंज हो जाएगी, सेम ऑपरेशन. आउटपुट कैसे मिलेगा? रिटर्न ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम फर्स्ट क्वेरी, लेफ्ट रिलेशन that are not combined in the second query, that are not contained in the second query, not combined, contained दूसरे में नहीं, वो ऐसे. सो रिलेशन 1 में होने चाहिए लेकिन रिलेशन 2 में नहीं होने चाहिए, ऐसे.
सो उसका मतलब क्या हुआ, कॉमन जो है वो हटा देना है फर्स्ट क्वेरी में से। सो हम पहले ये देखेंगे, मैनेजर माइनस एम्प्लॉय। सो मैनेजर में होने चाहिए लेकिन एम्प्लॉय में नहीं होने चाहिए, ऐसे नाम आने चाहिए। सो जय एम्प्लॉय में है, जय एम्प्लॉय टेबल में है, नहीं है तो वो आएगा। तीर्थ है एम्प्लॉय में तो नहीं आएगा, नॉट कंटेंट लिखा है, ठीक है। हरि है तो नॉट कंटेंट। फिर आगे देखना है हमें, नहीं क्यों, क्योंकि वी आर डूइंग दी मैनेजर माइनस एम्प्लॉय, तो स्मिथ का कुछ नहीं देखना है, ठीक है। इफ वी आर डूइंग दी एम्प्लॉय माइनस मैनेजर, देयर योर आंसर विल बी चेंज। सी हियर, एम्प्लॉय में देखो हरि मैनेजर में है तो उसको नहीं लेना है, नॉट कंटेंट। तीर्थ है, नहीं लेना है। स्मिथ नहीं है तो उसको यहाँ पे लेना है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ set difference and minus. Same thing I have written over here, display name of person who are manager but not employee. So क्या हुआ, manager minus employee, same example, manager minus employee. And display name of person who are employee but not manager, it means employee minus manager. क्या आंसर आएगा इसका, स्मिथ। नोटेशन क्या लिखेंगे हम, पाई नेम ऑफ एम्प्लॉय माइनस पाई नेम ऑफ मैनेजर, आंसर मिलेगा स्मिथ, राइट। क्लियर, जस्ट 1 minute. Okay, next topic is the aggregate function. Right now, it is not possible to complete with continuation in today's lecture. So we are stopping this lecture, and tomorrow we will start from that aggregate function, right? If you have any query, any doubt in any topic, you can ask. If you have any query, any doubt, you can ask. ओके, डाउट नहीं है तो आई हैव वन क्वेश्चन। आप लोगों में से how many of you have enrolled in a Oracle certification? Put yes into a chat, everyone. If yes, then yes, no, then no. Jit, are you a new student? If no, then you should know this thing what I have instructed you in a previous sessions or maybe in a lab or lectures. You should ask your friends, or you should see all the recordings of lab and lectures, right? And you should also check your email ID. Okay, tomorrow we will see the aggregate function, right?
Can anyone tell me what do you mean by aggregate functions? किससे बोलते हैं एग्रीगेट फंक्शन का मीनिंग? किसी को पता है? जनरल वे में मैथ्स में आता है। सम ऑफ, यस। टोटल सम ऑफ, उसका जनरल स्टेटमेंट मुझे बनाना है कि इसको एग्रीगेट फंक्शन बोलते हैं, तो क्या बोल सकता हूँ? The total of both the tables. What? The total of both. Okay. Okay, it combines all tuples of that attribute and it will give the one answer, single answer. जो भी कॉलम है उसके सारे टपल्स जो भी है उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा और आपको सिंगल आंसर मिलेगा। सिंगल आंसर। टोटल में क्या करते हैं? 5 रो है तो 5 रो का एडिशन करते हैं और आपको सिंगल आंसर मिलता है। मैक्स है, मैक्स क्या करता है? पूरे एंटायर एट्रीब्यूट्स में, पूरी एंटायर कॉलम में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करके देता है। मिनिमम से मिनिमम वैल्यू फाइंड करता है। एवरेज, ये सब एक्सेल की फॉर्मूला है। एक्सेल जिसको पता है उसको मजा आएगा, ठीक है? उसको एग्रीगेट फंक्शन बोलते हैं। सो दैट वी विल लर्न इन अ नेक्स्ट लेक्चर।